Hello everyone, welcome to Rotap. I am Santosh. So today we have the next class of our costing foundation series through the help of MCQs, right? Now in this particular class we are going to talk about the process costing, joint and by-product costing, and as well as about the service costing through the help of MCQs and through the help of related concept. So today's class is going to be a short one and as well as an important one, but we are not going to get into detail of any complex concept in this particular class because the concept we are going to discuss today have already been discussed in previous classes in brief, right? So I want all of you to evaluate yourself in today's class. Out of 10 MCQs, how many marks you are getting in today's class? You have to comment in the comment section because see, आज की क्लास बहुत कठिन तो होने वाली है नहीं, तो एक बार देखना कि कितने मार्क्स आ रहे हैं क्योंकि 5 क्लासेस हम कर चुके हैं ऑलरेडी. सो आई वांट यू गाइस टू इवैल्यूएट योरसेल्फ आउट ऑफ 10 मार्क्स, राइट? तो शुरू करते हैं आज की क्लास और ध्यान से हर क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका आंसर करने की कोशिश करनी है मुझसे पहले. क्यों? क्योंकि क्लासेस में जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है आज के. प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, सर्विस कॉस्टिंग क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग, राइट? ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, मेरे साथ क्वेश्चन करना है आप लोगों को और आंसर करना है, ठीक है, साथ साथ, और मार्क्स देते चलने हैं कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आउट ऑफ 10, या तो जो गलत हुए हैं उसको लिख देना क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे सारे बच्चों की, मुझे पता है, ठीक है. तो विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर इंडस्ट्रीज लाइक कैंटीन, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स. सो कैंटीन, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल ये सब क्या है? सर्विस इंडस्ट्रीज हैं और सर्विस इंडस्ट्रीज को केटर करने के लिए कौन सी मेथड ऑफ कॉस्टिंग वी हैव टू यूज, राइट? सो डू वी यूज आउटपुट कॉस्टिंग? नो. So do we use operating costing? Yes, absolutely. So for the service sector we use operating costing. So option number B is the correct answer here. I hope सबके आंसर सही हुए होंगे and if your answer is correct, give yourself 1 mark or else give yourself a 0 mark, right? Next question is, which type of costing is useful in manufacturing of product like steel, paper, medicine, chemicals? So I have already given you these examples: rubber industries, vegetable oils, paint, varnish, etc., where the production process is continuous and the output of one process becomes the input of second process. Please pay attention here. What is saying here? That if this is process 1 and if we have some input here and if we get some output here, output of this process becomes the input of second process and output of second process becomes the input of third process. So what type of costing method will be used in this type of industry, right? It is a very easy question, I guess. So standard costing, no. Process costing, yes, obviously, because it consists of various processes. So I hope every student has given the correct answer of this question, right? So third question we have is, which of the following statement is correct in regard to normal loss? This is something new, I guess. Okay. So what is normal loss? So normal loss is generally determined as a percentage of input. Okay. But let's read out the other option as well. Normal loss may arise due to evaporation. Yes, this is also correct. Normal loss may arise due to theft. No, this is incorrect. So option number D is correct. So you might be thinking how we are able to basically eliminate this option C and why the first option and second option is correct. Let me tell you the concept of normal loss first, then you are going to attempt this question, right? तो normal loss क्या होता है एक बार समझते हैं और इसके साथ साथ I will tell you what is abnormal loss as well. ठीक है जी, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए. अब मेरी बात ध्यान से समझना. लेट्स सपोज कि देर आर इनपुट्स इन प्रोसेस 1, राइट? नाउ किसी भी इंडस्ट्री में अगर इनपुट प्रोवाइड किए जाते हैं तो आफ्टर द प्रोसेस वी गेट आउटपुट, राइट? तो लॉस जनरली हर टाइप ऑफ इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ होता है. एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं स्टीम का यूज़ कर रहे हैं हम, कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं, कोई केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इनपुट जो हमने प्रोवाइड किया है उसमें से कुछ ना कुछ क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ लॉस हो गया, ठीक है? तो जो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लॉस को, ध्यान से मेरी बात सुननी है, दी लॉस विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द इंडस्ट्रीज
और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। ठीक है जी, समझ में आ गया, बहुत आसान था। वो लॉसेस जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, जिनको रोका नहीं जा सकता है, जो कि होंगे ही होंगे हर टाइप ऑफ इंडस्ट्री में, भले certain type of industries have certain type of loss, but they are uncontrollable, right? So they are normal losses. So suppose कि we have provided 1000 of input, 1000 unit of input, and in the output we only get 900 units. That means 10% is your loss, right? 10% of input is your loss, and this is what नॉर्मल लॉस इज ऑल अबाउट। सो अगर ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि 10% लॉस हम कंसिडर करते हैं इस टाइप ऑफ इंडस्ट्री में, तो 100 यूनिट्स क्या हो जाएंगी, नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आ जाएगा। बट इंस्टेड ऑफ 100 यूनिट्स, लेट्स सपोज the number of loss units are, let's suppose 200, then your 100 is normal loss, but rest of 100 units are your abnormal loss. Are you getting this thing? Because the industry's standard says that 10% of input will be a normal loss. So in this case, we have only output as 800 units. So rest of 100 units is your abnormal loss. तो नॉर्मल लॉस भी समझ में आ गया हमको और abnormal लॉस भी समझ में आ गया। तो abnormal लॉस क्या होता है, जो कि कंट्रोलेबल है। मान लेते हैं कि 100 यूनिट्स में फायर लग गई या फिर थेफ्ट हो गया यूनिट्स का, तो ये सब कंट्रोलेबल लॉसेस थे जो कंट्रोल हो सकते थे। सो दे आर अब नॉर्मल लॉसेस। और नॉर्मल लॉस क्या है, जो सेट स्टैंडर्ड है कि 10% तो लॉस होगा ही होगा ड्यू टू इवेपोरेशन। ठीक है जी, समझ में आ गया नॉर्मल लॉस क्या होता है, अब नॉर्मल लॉस क्या होता है। बहुत आसान था, कुछ कठिन नहीं था इसमें। अब एक बार दोबारा से फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। What do we have in the first option? First option says normal loss is generally determined as the percentage of input. So we have seen here that 10% of input we are taking as a normal loss, isn't it? So first option is your correct option. Okay. Second option says normal loss may arise due to evaporation. That is absolutely correct as well, right? Because in certain type of industries, normal loss can happen due to evaporation. Okay. Your third option says normal loss may arise due to theft. No, theft is in the category of abnormal loss. क्योंकि अगर ज़्यादा हमने सिक्योरिटी रखी अपनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो चोरी होने का खतरा कम है ना, isn't it? So ये controllable cost थी हमारी. So therefore it will be included in the abnormal loss, not in the normal loss. Okay. So third option is incorrect. So option number D is your correct answer because it says both A and B. I hope it is clear to you. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. Question number third का answer we have both A and B. Next question we have is in the question number 4. Which of the following statements are correct? The cost of each process comprises the cost of material and employee cost only. It is saying the cost of each process comprises the cost of material and employee cost only. So it is wrong. Why? Because process cost also, in the process we also includes overhead related to the production as well, right? So where is production here? Where is production overhead is it? Overhead is it, right? So it is wrong. Second option says operation costing is the refinement of the process costing. It is correct. So we have discussed this thing, right? Ki operation costing is a refinement of the process costing because several operations consist of a single process. So when we go into the detailed costing, we use operation costing instead of process costing, though the procedure of both these costing are one and same. But just for the sake of naming convention, we call it operation costing because it is very much detailed than that of process costing. Is it clear? Okay. So option number 2 is absolutely correct. Option number 3 says production of a product may give rise to joint or byproduct. Absolutely correct. So we have to tell what are the statement which are correct. So we have option number 2 and 3, that is option number B is the correct answer, right? चलो एग्जांपल देता हूँ आप लोग को कि इसमें एक कॉन्सेप्ट आया जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का, तो एक बार समझते हैं कि व्हाट इज दिस जॉइंट प्रोडक्ट एंड व्हाट इज दिस बाय प्रोडक्ट. ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना है क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है, बट वेरी इजी वन, नथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल, वेरी लॉजिकल वन, राइट? तो जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, मेरी बात ध्यान सुनना. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम क्रूड ऑयल का. जब भी क्रूड ऑयल का हम रिफाइनमेंट करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, हमें कैरोसिन मिलता है, हमें पेट्रोल मिलता है, हमें डीजल मिलता है. तो ये सारे जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं. क्यों जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं? क्योंकि हमने जो प्रोडक्शन, जो भी प्रोसेस चालू किया है क्रूड ऑयल से,
उसका मोटिव है हमको ये सारे के सारे प्रोडक्ट चाहिए, मतलब डीजल भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए और केरोसिन भी चाहिए, इजंट इट? सो हमारा प्राइमरी मोटिव इज नॉट लिमिटेड टू ओनली पेट्रोल, वी वांट डीजल एज वेल, वी वांट पेट्रोल एज वेल, वी वांट kerosene as well, and we have some other products as well in this process. So जब प्राइमरी मोटिव हमारा कोई एक प्रोडक्ट नहीं है, सारे प्रोडक्ट की इकोनॉमिक वैल्यू है अच्छी खासी, एंड वी वांट एवरी प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड, तो जब हमारा प्राइमरी मोटिव सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जॉइंट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है सर? जॉइंट प्रोडक्ट तो समझ में आ गया, बट कन्फ्यूजन हो गया कि बाय प्रोडक्ट क्या होता है। फिर जॉइंट प्रोडक्ट समझ में आ गया, जब फर्म की जो प्राइमरी मोटिव है वो क्या है? सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करना है, तो सारे के सारे जॉइंट प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है? बट बाय प्रोडक्ट क्या होता है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल समझते हैं इसको भी। बाय प्रोडक्ट में क्या होता है? जो मेन प्रोडक्ट होता है और एक होता है बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वन ऑफ द प्रोडक्ट इज मेन प्रोडक्ट एंड अदर प्रोडक्ट इज बाय प्रोडक्ट। अब एग्जांपल के लिए लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो भी फर्म है या फिर जो भी प्रोसेस कर रही है इंडस्ट्री, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मैन्युफैक्चर करना है एक तरह के प्रोडक्ट को, ठीक है? ये है फर्स्ट प्रोडक्ट। जो इसके साथ इंसिडेंटली प्रोड्यूस हो गया है, मैंने क्या कहा? जो इसके साथ इंसिडेंटली प्रोड्यूस हो गया है वो सेकेंडरी प्रोडक्ट है, इसे कहते हैं बाय प्रोडक्ट। तो बेसिकली जो फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है वो मैन्युफैक्चर करना चाहती है, उसका जो मोटिव है, प्राइमरी मोटिव, वो फर्स्ट प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना ही है, बट इंसिडेंटली या फिर एंसिलरी टू दिस प्रोसेस दिस सेकेंडरी प्रोडक्ट इज ऑल्सो गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड और इट इज गेटिंग प्रोसेस्ड इन प्रोसेस, राइट? सो जो मोटिव था वो खाली फर्स्ट प्रोडक्ट को ही प्रोड्यूस करना था। तो जो ये सेकेंडरी प्रोडक्ट है, दिस इज व्हाट वी कॉल बाय प्रोडक्ट। अरे सर ऐसे समझ में नहीं आया, एग्जांपल दे दीजिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, भी समझ में आ जाएंगे। ये पहला एग्जांपल समझ में आ गया जॉइंट प्रोडक्ट का। बाय प्रोडक्ट का एग्जांपल तो बहुत सिंपल है। शुगर केन से जब हम शुगर प्रोड्यूस करते हैं तो बाय प्रोडक्ट क्या होता है? मोलासेस, ठीक है? जब हम शुगर केन से क्या करते हैं? शुगर प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट जो है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारा जो प्राइमरी मोटिव है प्रोड्यूस करना क्या है? शुगर। बट शुगर के साथ साथ क्या होता है? यहाँ लिख देता हूँ, बट शुगर के साथ साथ हमारा मोलेसेस भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है? तो शुगर के साथ जब मोलेसेस प्रोड्यूस हो गए हैं तो ये हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट है, ये हमारा सेकेंडरी प्रोडक्ट है। इस केस में मेन प्रोडक्ट हमारा शुगर हो गया और मोलेसेस हमारे हो गए सेकेंडरी प्रोडक्ट, जिसे बोलते हैं बाय प्रोडक्ट एज वेल, ठीक है? तो जिस जो काम आता है एनिमल फीडिंग के या इथेनॉल के या फिर रम में, ठीक है? तो इस तरह की जो कॉस्टिंग होती है उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग। और जो जहाँ पे हम लोग हमारा मोटिव था कि सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, एंड दैट वी यूज जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग। इसका पर्पस क्या है? क्यों यूज कर रहे हैं हम ये सब कॉस्टिंग, क्यों यूज करते हैं? देखो, सारी कॉस्टिंग का एक ही पर्पस है कि जब प्रोडक्ट में हम अपोर्शन करेंगे ना, जब प्रोडक्ट में अपोर्शन करेंगे इन सारी कॉस्ट को, तो उसका लॉजिकल बेसिस हो। अपोर्शन पढ़ाया था ना, अपोर्शमेंट क्या होता है, रीअपोर्शमेंट क्या होता है, अलोकेशन क्या होता है। तो लास्ट में तो प्रोडक्ट ही अब्जॉर्ब करेगा ना सारे कॉस्ट को, तो उनका एक लॉजिकल बेसिस हो, इसलिए जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग या बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग की जा रही है, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन आसान था बहुत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर योर। ऑप्शन नंबर 2 and 3 आर करेक्ट। और जॉइंट प्रोडक्ट समझ में आ गए होंगे, बाय प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी था, कुछ कठिन नहीं था इसमें, कुछ भी टफ नहीं था, ठीक है? So the fifth question we have is, which of the following statement is or are correct? So this question is related to the abnormal loss and normal loss, and we have already discussed about this concept. तो I want कि सारे बच्चे इसका आंसर सही करें, किसी का गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है? Abnormal loss is an unexpected loss. ये तो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पर हमें पूछा गया इनकरेक्ट, ठीक है? सही लग रहा है ना, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस तो अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि नॉर्मल लॉस में हम परसेंटेज डिफाइन कर देते थे कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ इनपुट विल बी लॉस्ट इन दी प्रोसेस एंड दैट इज व्हाट योर नॉर्मल लॉस इज। बट अब नॉर्मल लॉस इज योर अनएक्सपेक्टेड लॉस, सो दिस स्टेटमेंट लुक्स करेक्ट, isn't it? So your second option says abnormal loss is the difference between the actual and the predicted loss. Yeah, this is also correct, because whatever you have predicted that actual loss could be 10%, but your loss, actual loss, your predicted loss is 10%, but your actual loss, let's suppose it is 20%. So the difference is your abnormal loss. This is absolutely correct, right? Third option says abnormal loss is simple to estimate in advance. No, not at all. Why? अगर ये सिंपल होता तो ये abnormal loss कैसे होता? अगर एस्टिमेट हो ही जाता है पहले, ये तो अनएक्सपेक्टेड है ना, तो ये एस्टिमेट एडवांस में नहीं कर सकते हम, राइट? जो हम एस्टिमेट कर सकते हैं एडवांस में, दैट इज योर नॉर्मल लॉस। सो ऑप्शन नंबर दिस स्टेटमेंट नंबर 3 इज इनकरेक्ट एंड वी हैव टू गिव द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज
इनकरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर है यार। ओके, आई होप सबका सही होगा, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, इतने आसान क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव इज टोटल इनपुट ऑफ गुड्स इज 2000, क्लोजिंग स्टॉक इज 200 यूनिट्स which is 50% complete, finished goods is 1600, what is the equivalent production if the normal loss is 10%। अब इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट आए हैं, सो वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। इसका क्वेश्चन सेबी में पूछा जा चुका है, तभी मैंने इसको पुट किया है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, सेबी के एग्जाम में, शायद 2020 में आया था आई गेस। बहुत ईजी होता है, कुछ नहीं होता इसमें, मैं बताता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात। क्या करते हैं ना, जैसे मान लेते हैं कि एक चेयर मान लेते हैं, चेयर का एग्जांपल लेते हैं। अब मेरी ड्राइंग तो बहुत ख़राब है, बट लेट्स सपोज दिस इज चेयर, ठीक है, लग तो रही है यार चेयर, ठीक है, हाँ चेयर लग रही है ठीक है, ये चेयर हो गई हमारे पास। अब मान लेते हैं कि इसको प्रोड्यूस करने में 1000 रुपये लगते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, इसको जो मैन्युफैक्चर करने में 1000 रुपये लगते हैं, लेट्स सपोज। अब फर्म ने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ हाफ चेयर तैयार हुई है, मतलब इसका पहले का ढांचा तैयार हो गया है और ये सीट तैयार हो गई है, पर इसके लेग्स नहीं लग रखे हैं अभी, ठीक है। ये 50% कंप्लीट है, लेट्स सपोज 50% कंप्लीट है। तो जब हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन लेते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्यों ले रहे हैं, अब हमें पता करना है कि इसमें कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हुई होगी, इस इतनी आधी चेयर को बनाने में कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हुई होगी। तो आसानी से यू कैन टेल ना कि 1000 में अगर टोटल चेयर बन रही है, पूरी चेयर कंप्लीट चेयर बन रही है, तो हाफ वुड बी कंप्लीटेड इन हाफ ऑफ द टोटल सम, राइट, दैट इज ₹500। तो जो ये हाफ चेयर 50% कंप्लीट चेयर तैयार हुई है, इसमें अभी तक कितनी कॉस्ट लगी होगी, 500 चेयर, इजंट इट। तो इसका मतलब है अगर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की बात करें तो ये टोटल प्रोडक्शन के एक यूनिट के कितने इक्विवेलेंट है, 0.5, मतलब हाफ। आसान नहीं था बहुत। अब एक थोड़ा सा बढ़ाते हैं, एक्सटेंशन करते हैं। मान लेते हैं कि 2 चेयर कंपनी को बनानी थी, कंपनी ने 2 चेयर हाफ बनाई है, ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात को। कंपनी ने 2 चेयर हाफ बना दी, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि कंपनी ने एक कंप्लीट चेयर बनाई है? जवाब दो, क्या मैं ये कह सकता हूँ? कह सकता हूँ ना, क्योंकि 50% चेयर ये कंप्लीट हुई, 50% चेयर ये कंप्लीट हुई है, टोटल 2 करनी थी, 50% ये हुई है, 50% ये हुई है, तो टोटल कितनी तैयार हो गई है? 1, क्योंकि 2 का 50% अगर निकालोगे, 2 चेयर्स में 50% काम हुआ है, तो 2 चेयर का 50% निकालोगे, इट इज हाउ मच? इट इज 1। सो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना हो गया? 1 चेयर का। बस यही कॉन्सेप्ट था। अरे सर इतना आसान, बस इतना ही आसान होती है कॉस्टिंग। 1 चेयर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है, बात समझ में आई? तो जो एक चेयर को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट होती होगी, उसी को हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे दोनों चेयर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दोनों चेयर में एक कंप्लीट चेयर की प्रोडक्शन कॉस्ट तो लगी ही होगी। इस तरह से हम कॉस्टिंग करते हैं जो थोड़े बहुत कंप्लीट होते हैं प्रोडक्ट उनके लिए। तो अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, अभी खाली मुझे कॉन्सेप्ट समझाने हैं कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गई बात? तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या हो गया इसका? 1। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। लेट मी रब दी इंक फर्स्ट। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है, 1 मिनट पेन एक्टिवेट कर लूँ मैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है 2000 रुपये, 2000 इनपुट था मटेरियल हमारे पास। क्लोजिंग स्टॉक जो था हमारे पास वो 200 यूनिट बची है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट बराबर होना चाहिए ऑब्वियसली, है ना। तो 200 यूनिट हो गया। फिनिश गुड्स आपके 1600 हो गए, ठीक है जी, फिनिश गुड्स हो गए। उसके बाद हमारा नॉर्मल लॉस था 10%। नॉर्मल लॉस था 10% हमारा, इसका मतलब है 200 हमारा नॉर्मल लॉस था, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है? 200 है। लेकिन एक चीज़ गौर करो, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक तो था 200, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स था हमारा 1600, इसंट इट? तो टोटल कितना हो गया? 1800 हो गया। इसका मतलब जो हमने लॉस किया होगा वो कितना होगा? 1800 माइनस 2000 कितना होगा? 200। तो ये हमारा लॉस होगा, इसंट इट? By balancing this equation we know that our loss is 200, but normal loss कितना होना चाहिए था वो एक बार देख लेते हैं। जो 10% ऑफ 2000, 200। इसका मतलब जो लॉस हुआ है ना, ये सारा का सारा नॉर्मल लॉस है, कुछ भी अब नॉर्मल लॉस नहीं हुआ था। इतनी बात समझ में आ गई हमको? ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत आसान था। टोटल इनपुट आपने बराबर कर दिया कि क्या क्लोजिंग स्टॉक था, क्या फिनिश स्टॉक था, फिर आपने निकाल दिया कि लॉसेस कितने हो रहे हैं इस इनपुट के लिए। फिर आपने देखा कि नॉर्मल लॉस कितने हो रहे थे, तो नॉर्मल लॉस और ये लॉस बराबर है, तो मतलब कि सारे के सारे जो लॉस हुए हैं वो नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल लॉस कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। और हमको निकालना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना हुआ है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन तो 1600 यूनिट्स तो प्रोड्यूस हुई है हमारी, ये तो हमें कंफर्म है, बट क्लोजिंग स्टॉक हमारा 200 था,
दैट इज योर 50% कंप्लीट। वो हमारा कितना कंप्लीट हुआ है? 50% कंप्लीट हुआ है, मतलब कि 200 यूनिट्स अगर है तो 50% कंप्लीट है। इसका मतलब है इक्वलेंट कितना होगा? 200 का 50%। अब एग्जांपल दिया था ना, वैसे ही करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा? 100 आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो 1600 प्लस 100 इज हाउ मच? 1700 यूनिट्स। तो हमारी जो इक्वलेंट प्रोडक्शन आई है वो आई है 1700 यूनिट्स। इसमें कोई तकलीफ है? कुछ टफ था इसमें? कुछ नहीं था, बहुत आसान था। नॉर्मल लॉस हमारा बराबर था तो हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो 1700 हमारा आंसर हो गया, ठीक है जी। नाउ वी हैव द 7th क्वेश्चन एज टोटल इनपुट ऑफ गुड्स इज गिवन टू यू एज 2000। सो टोटल इनपुट ऑफ गुड्स आर गिवन टू यू 2000 will be equal to what? Will be equal to closing stock, right? And that is your 50% complete, and scrap is 250 units. Scrap means your loss in the process is 250 units after they were 100% complete. Okay, what is the equivalent production with the normal loss is 10% and finished goods is 1550. So total input will be equal to closing stock plus 1550, that is your finished stock, this is your closing stock, plus your whatever losses you have generated. So scrap is your 250 units, right? So when you will add these three, 1550 plus 450, that is your 2000. So that is correct, right? So this is your loss. Now see, in the question it is given to you that normal loss is 10% of the inputs. That means if you calculate 10% of 2000, 200 will come out, right? So that means this 250 of loss consist of two type of losses. First one is normal loss and second one is abnormal loss. This is very important, हाँ, इसको ध्यान रखना है, बड़े ध्यान से सुनना इसको। 250 टोटल स्क्रैप था, टोटल लॉस था, बट उसमें से हमारा 200 ही नॉर्मल लॉस है, दैट विल बी अब्जॉर्ब्ड बाय द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, राइट? एंड दिस abnormal loss that is of 50 units, right, is given to you in this question. अब हमें अगर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालना है तो एक चीज़ बड़ी ध्यान से मेरी बात सुननी है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन थोड़ा आसान था, क्योंकि जो टोटल लॉस था वो नॉर्मल लॉस के बराबर था, तो हमने कुछ नहीं किया था, हमने फिनिश स्टॉक को सिर्फ प्लस कर दिया था क्लोजिंग स्टॉक के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से। इस क्वेश्चन में फिनिश स्टॉक को प्लस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से, दैट इज 50% ऑफ 200 यूनिट्स इज योर 100 यूनिट्स, राइट? इतना तो हम करेंगे, ठीक है, इतना तो हमें समझ में आता है। इसके साथ ही साथ हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में अब नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को भी ऐड करेंगे, क्योंकि इसको बनाने में भी पूरा खर्चा हुआ है हमारा, बिकॉज दे आर 100% कंप्लीट होने के बाद, पूरा खर्चा करने के बाद ये लॉस हुआ है हमें, तो इसको भी हम ऐड करेंगे। किसमें? क्योंकि बनाने में खर्चा लगा है ना, तो अब नॉर्मल लॉस 50 यूनिट भी ऐड होंगी। ये ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालते टाइम पे हमें फिनिश गुड तो ऐड करेंगे, क्योंकि फिनिश गुड तो ऑब्वियसली खर्चा हुआ है उसमें, ठीक है। हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इसलिए निकाल लेंगे कितने यूनिट्स हमने खर्चा कर दिया है, तो फिनिश गुड्स में तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके अलावा हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो भी था, अगर उसका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन दे रखा है कि कितना % काम हुआ है उसमें, तो उतना % निकाल के वो भी करेंगे, बट साथ ही साथ अब नॉर्मल लॉस को भी ऐड करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा 1550 प्लस 50 है 1600 प्लस 100 इज 1700 यूनिट्स, ठीक है जी। ये क्वेश्चन तो आसान हो गया। अब अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि अब नॉर्मल गेन है तो क्या करते, कौन बताएगा? अब नॉर्मल गेन होता तो क्या करते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी तरह के क्वेश्चन में आ सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी में क्वेश्चन आया था, सेबी आई थिंक 2020 में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का क्वेश्चन आया था, थोड़ा और इजी था इससे, उस पर शायद अब नॉर्मल गेन और अब नॉर्मल लॉस नहीं था, बट अब ये आ सकता है, क्योंकि अब नॉर्मल गेन और अब नॉर्मल लॉस भी आपको आता है, ठीक है। क्योंकि पेपर का लेवल तो हाई होता रहेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है। तो अगर अब नॉर्मल गेन होता है इस क्वेश्चन में, तो हम कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन? तो हम करते हैं सेम चीज़, बट हम इस अब नॉर्मल, जहाँ हमने अब नॉर्मल लॉस को प्लस किया है ना, वी विल बी डिडक्टिंग अब नॉर्मल गेन फ्रॉम दीज टू, ठीक है। क्या करना है हमें? फिनिश स्टॉक करते हैं प्लस क्लोजिंग स्टॉक की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन करते हैं माइनस अब नॉर्मल गेन की यूनिट्स कर देते हैं। ध्यान रखना है, गेन है तो माइनस करेंगे, लॉस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है, यूनिट्स में, ठीक है। बात समझ में आती है इतनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमें पता चल गया अभी कि 1700 है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 सेज द अपोर्शमेंट ऑफ द जॉइंट कॉस्ट। अपोर्शमेंट अगर जॉइंट कॉस्ट का हम वेरियस प्रोडक्ट में करते हैं ना, it helps in what? To determine the cost per unit of the product. Obviously this is correct. To determine the profit and loss on each line of product, it is also correct. To determine the price of each product, बिल्कुल सही। तो all of the above will be the answer
इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था पर्पस क्या है जॉइंट कॉस्ट निकालने का, यही पर्पस है ना, ताकि हर प्रोडक्ट पे अपोर्शन कर सके हम, ठीक है, उस जॉइंट कॉस्ट को. सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ऑपरेटिंग कॉस्ट इज एप्लीकेबल टू. ऑपरेटिंग कॉस्ट कहाँ होती है यूज? सर्विस इंडस्ट्री में. वेरी इजी. तो हॉस्पिटल में यूज़ होगी? जी हाँ बिल्कुल होगी. सिनेमाज में यूज़ होगी? बिल्कुल, ये भी सर्विस इंडस्ट्री है. ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग? बिल्कुल सही. होटल भी सर्विस इंडस्ट्री है, तो बिल्कुल सही. तो इसका भी आंसर होगा ई, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, अब आते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, और यह है हमारा होमवर्क क्वेश्चन. सारे बच्चों का होमवर्क क्वेश्चन है. और अभी 10 में से कितने मार्क्स आए? अगर देखना, अगर 10 में से लगभग, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन का कॉन्सेप्ट थोड़ा नया था, इसलिए मैं इसका जो सही मार्किंग है, जो मतलब अच्छे नंबर मानूंगा मैं, अगर आपके 6 मार्क्स भी आए हैं, तो 6 प्लस आए हैं, अगर 6 या 6 से ज़्यादा आए हैं तो ये अच्छे मार्क्स माने जाएंगे. क्योंकि मैं 1-2 क्वेश्चन काट रहा हूँ किसके, जो थोड़े से हमने एडवांस कॉन्सेप्ट सीखे. बहुत ज़्यादा एडवांस तो नहीं थे फिलहाल, मॉडरेट कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे, अब नॉर्मल लॉस के, अब नॉर्मल गेन के, इक्वलेंट प्रोडक्शन के. ठीक है, तो इसलिए अगर 6 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो दैट्स अ गुड मार्क्स हियर, राइट. तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 10 में से कितने नंबर आ रहे हैं इस 10th क्वेश्चन को इंक्लूड करके, क्योंकि अब मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ अब नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल गेन का. तो क्वेश्चन क्या है एक बार मैं पढ़ देता हूँ. टोटल यूनिट ऑफ गुड्स आर सेम 2000, है ना, ऐसे करते हैं हम लोग. क्लोजिंग स्टॉक हम करते हैं 200 प्लस फिनिश गुड्स आर 1750. तो हमारे, अब मैं आगे नहीं बताऊँगा, अगर सब बता दूंगा तो क्या फ़ायदा, है ना. 1750 प्लस 200 कितना हो गया? 1950 हो गया. अब आगे कर लेना अपने आप. ठीक है, तो 50 यूनिट्स होनी चाहिए, जो होनी चाहिए स्क्रैप, पर कितनी है देख लेना. अच्छा, स्क्रैप 50 यूनिट्स है, ठीक है, स्क्रैप तो हमारा सही है, स्क्रैप होनी चाहिए. अब लेकिन नॉर्मल लॉस कितना है इसमें? 10% है, तो 10% कितना होना चाहिए? 200. इसका मतलब है जो स्क्रैप है ये नॉर्मल लॉस से बना हुआ है, और क्योंकि 200 होना चाहिए था बट है 50, इसका मतलब है अब नॉर्मल गेन से बना हुआ है. अब नॉर्मल गेन कितना है? 150, तभी तो 50 आया ये, 200 माइनस 150. ठीक है, तभी तो 50 बची स्क्रैप हमारे पास. अब नॉर्मल गेन कितने का हो गया हमारा? 150 का. अब कर लेना क्वेश्चन. ठीक है, अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालना है, तरीका पहले का ही है, कुछ नहीं करना है. तो 10 में से कितने मार्क्स आए हैं ये बताना है, और इसका आंसर भी कमेंट कर देना कि इसका आंसर क्या होना चाहिए एक्चुअली में. 1500 होना चाहिए, 1600 होना चाहिए, या 17 या फिर 1800. ठीक है जी. 10 में से कितने मार्क्स? अगर 6 प्लस आए हैं तो दैट इज़ गुड, कि तैयारी अच्छी चल रही है. एक बार लेंगे थोड़ा सा, जितने भी हमने लेक्चर्स कर लिए हैं अभी तक, एक बार मैं सबके कंबाइंड क्वेश्चन रखूँगा. ठीक है, तब देखते हैं इसमें मार्क्स सबके किसके कितने आते हैं सारे बच्चों. ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही. मुझे कमेंट सेक्शन कर देना, मुझे पता चल जाएगा कि कैसी तैयारी चल रही है, उसके हिसाब से मैं लेवल बनाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर का. चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय.